Hi, good morning, my dear student. Today we will continue your class 12th history, chapter 4, Thinker, Beliefs and Building. My dear student, if you have remember what we studied in this chapter, we had discussed about the history of Bauddha religion, about the history of Jainism and their philosophy. We also studied about why we called the 6th century BC is turning point in Indian history. Dear student, this is very interesting that during study this chapter, we find some important fact which gives us some new knowledge about the building structure, about the first building structure, symbol, auspicious symbol, and the comparative study between Buddhism and Jainism we have discussed. We also read about the literature play a very important role to know about the history of particular religion which was practiced from 6th century BC to onwards. Dear student, today we will try to understand about stupa and stupa architecture. I hope you have remembered my previous class where I told you that the stupa concept is not a new concept. Stupa that was discussed in also the Brahmanical religion. स्तूप कोई नई सोच नहीं थी, स्तूप की संरचना कोई एक नई संरचना नहीं थी। स्तूपों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया था वेदों में। आग की उठती हुई ज्वालाओं को स्तूप कहा गया, द फ्लेम ऑफ फायर। फिर मैंने आपसे कहा स्तूपों के बारे में और विकसित मानसिकता आई और विस्तृत किया गया इसे। वृक्ष के फैले हुए क्षेत्र को, उसके सैडल को, उसकी जो छाया होती है सैडो को वितान कहते हैं हिंदी में। वृक्ष के वितान को भी स्तूप कहते हैं। स्तूप ब्राह्मण धर्म में लोगों की मृत्यु के पश्चात जब उन्हें दफन किया जाता था तो उसके ऊपर मिट्टी का थुआ या ढेर बना दिया जाता था। इस मिट्टी के थुए या ढेर को भी स्तूप कहा गया। स्तूप जो कि चिता के भस्मों के आधार पे, चिता के भस्मों के ऊपर थी, चिता भस्मों के ऊपर थी, या जो अवशेष बच जाते थे उनके ऊपर मिट्टी का थुआ खड़ा करते थे, इसलिए स्तूपों को चैत्य भी कहा जाता था। इन सारी चीजों के बारे में हमने आपको पुरानी क्लास में बताया था। आई होप यू हैव रिमेंबर that these all information which was given by me in your previous class, that the stupa, it has the different name, chaitya, the flame of fire, stupa, the tree shadow, and such type of other. It has already explained in literature. It is very strange that the concept of stupa, it was found. Yeah, it is found. We can say it is also why, because literature we have nowadays, we can easily found, हम उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। We can easily find that point, that fact. So it is very strange that the information of stupa is compiled in the various literature, various religious literature, Brahmanical literature, Buddhist literature. Somewhat we find in Jainism also a different type of structure that is also we can interrelate it. तो इनके बारे में हम लोगों ने विस्तार से बात की थी। अब स्तूप के बारे में बात करते हैं। स्तूप, जैसा कि मैंने आपसे कहा, as I told you that it is old concept. Stupa is old concept. Gradually
Both religion also adopted it, and it is very interesting fact, having read this, that the stupa is first religious building which was made by Buddhist. तो हम कह सकते हैं धार्मिक रूप से भारत में जो कोई आर्किटेक्चर के रूप में संरचना सामने आती है वो स्तूप है। स्तूपों में कई तरह की स्तूप, आपकी बुक कहता है, अकॉर्डिंग टू योर बुक, दैट कि समटाइम वी फील सम प्लेस इज very auspicious. Why? Because when we reach particular place, we feel that the internal calm and peace. अजीब शांति की अनुभूति होती है। कुछ चट्टानों को, कुछ प्राकृतिक जगहों पे, कुछ झीलों में या कुछ ऐसी जगहों पे, निर्जन जगहों पे जहां जाने पे मन को आत्मिक सुख प्राप्त होती है। तो ऐसे प्रतीक स्थलों को भी धार्मिक महत्व के रूप में रखा गया। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि किस तरीके से बौद्ध धर्म का विकास विभिन्न धर्मों के साथ हुई चर्चा, विभिन्न धर्मों के साथ हुए आपसी तर्क वितर्क और फिर उनके बाद निकले कंक्लूजन पे हुआ था। तो बौद्ध धर्म काफी विकसित रूप में एक मैच्योर फॉर्म में सामने आई। अगर मैंने आपसे कहा था स्तूपों को बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात स्तूपों का निर्माण हुआ। बुद्ध के धातु अवशेषों पे, बुद्ध के बॉडी पार्ट जो रिमेन्स बॉडी पार्ट थे, उनको जलाने के बाद जो राख और हड्डियों के अंश प्राप्त हुए थे, उनको 8 भागों में बांट दिया गया। उन लोगों के नाम मैंने आपको बताए थे 8 के, अलकप के बुली, कपिल वस्तु के साक के, रामग्राम के कुली, वेटदीप के ब्राह्मण, कुशीनारा के मलपा, ये इन लोगों ने, और साथ ही साथ मगध के शासक अजातशत्रु ने भी इसको उसकी एक हिस्सा प्राप्त किया। अर्थात कुल 9 भागों में बुद्ध के धातु अवशेषों को बांटा गया। इन लोगों ने इसके ऊपर स्तूपों का निर्माण कराया। स्तूपों के बारे में महापरिनिर्वाण सूत्र में क्लियर एक्सप्लेनेशन प्राप्त होता है। महापरिनिर्वाण सूत्र बौद्ध ग्रंथ है, इसमें पहली बार हमें स्तूपों के बारे में डिटेल सूचना प्राप्त होती है। महापरिनिर्वाण में बुद्ध अपने परंश से आनंद को कुछ उपदेश देते हैं और इसी उपदेश में वो कहते हैं कि मेरा अंतिम संस्कार तुम एक चक्रवर्ती सम्राट की तरह करना और महान योगी की तरह करना। चक्रवर्ती सम्राट और महान योगी। इट इज वेरी इजी टू से दैट the last statement which was taught by Buddha to his disciples Anand, that you have to what? You have to do my funeral as a very grand emperor, एक शानदार सम्राट की तरह है, and also grand saint. But it is very contradictory sentence which was given by Buddha. Anand was very astonished having seen that statement. What the Buddha is saying. He told them, Bhagwan, Lord, please explain what you are saying. I am not getting properly. Then Buddha replied कि आप लोग क्या करना है, आप लोगों को मेरे मृत्यु के पश्चात जो धातु अवशेष प्राप्त होंगे, मेरे चिताओं के जो बाद जो हड्डियां और राख बचेंगी, उनको आप चतुष्पथों पे, चौराहों पे, आप वहां पे स्तूपों का निर्माण कराना। ये बात बुद्ध ने आनंद को समझाया और यहीं से बौद्ध धर्म में स्तूपों के निर्माण की बात दिखाई देती है। मैंने आपको कल बताया था कि स्तूपों के प्रकार, मैंने कहा था आपसे कि 4 प्रकार के स्तूप होते हैं। शारीरिक स्तूप, शारीरिक नाम से ही क्लियर है, फिजिकल जो उनके बॉडी पार्ट होंगे, दांत, बाल, नाखून, इस तरह की चीजों के ऊपर स्तूपों के निर्माण कराए गए। ऐसे स्तूपों में जिसमें बुद्ध के दांत, बाल, नाखून जैसे शरीर के कोई भी अंश विद्यमान हो, उसे शारीरिक स्तूप कहा गया। दूसरे स्तूप थे पारभौगिक स्तूप। पारभौगिक स्तूप के बारे में मैंने आपसे कहा था कि ये उस प्रकार के स्तूप थे जिसमें बुद्ध के उन वस्तुओं को रखा गया था हर्मिका में,
जिनका प्रयोग बुद्ध ने अपने जीवन में किया, जैसे भिक्षा पात्र, जैसे उनकी खड़ाऊं, जैसे उनके चीवर, जैसे उनके वस्त्र, इस तरह की तमाम सारी चीजें जिनका उपयोग बुद्ध ने अपने दैनिक जीवन में किया, ये पारभौगिक थे। उद्देशिक स्तूप, तीसरा स्तूप था उद्देशिक स्तूप। उद्देशिक स्तूप का अर्थ हुआ कि जिन प्लेसों पे, जिन स्थानों का विजिट बुद्ध ने किया, उन स्थानों के आधार पे बुद्ध ने उन जगहों पे स्तूपों का निर्माण किया गया और ऐसे स्तूप उद्देशिक स्तूप कहलाए। जैसे सारनाथ, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, कुशीनगर, इस तरह की तमाम सारी जगह जहां पे बुद्ध गए, बुद्ध ने उन जगहों पे अपना सरमन किया, प्रीच किया। ऐसे प्लेस जो बुद्ध के द्वारा, बुद्ध के पैरों के तले या वहां पे रुक के उन्होंने अपने उपदेशों को दिया, ऐसी जगहों पे उद्देशिक स्तूप का निर्माण हुआ। तीसरे प्रकार का, जो चौथा प्रकार का स्तूप था, वो स्तूप था संकल्पित स्तूप। ऐसे प्रकार के स्तूपों का निर्माण एक पुण्य का काम माना जाता था। इट इज वेरी ऑस्पिशियस वर्क इन बुद्धिज्म। सपोज कोई मान्यता रखे और उसकी मान्यता पूरी हो जाए तो छोटे छोटे स्तूपों का निर्माण कराता था। अशोकावदान नामक एक ग्रंथ में उल्लेख है कि अशोक ने अपने शासन काल में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। 84,000 स्तूप, दैट इज द नंबर ऑफ 84 इज वेरी वास्ट। इतने ज्यादा स्तूपों का निर्माण हुआ, स्तूप बन गए। स्तूप 3rd सेंचुरी BC से लेके स्तूपों का निर्माण कालांतर में काफी अधिक दिनों तक हमें दिखाई देता है। हमें गुप्त काल तक स्तूप बनते हुए दिखाई देते हैं। 5th सेंचुरी AD तक हमें स्तूप बनते हुए दिखाई देते हैं। जो स्तूप का टाइम पीरियड है स्तूपों का बनने का, वो धमेक स्तूप गुप्त पीरियड का है। सांची, सारनाथ, भरहुत, ये स्तूप मौर्य काल के हैं। कालांतर में इन स्तूपों के ऊपर और भी राजवंशों ने स्तूपों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये एक छोटी सी हिस्ट्री थी स्तूपों की। फिर इन स्तूपों को ब्रिटिश काल में ढूंढा गया। कुछ स्तूप क्यूरियोसिटी बस ढूंढे गए, कुछ स्तूप को ढूंढना इसलिए जरूरी था क्योंकि अंग्रेज इन चीजों को अपने यहां से, इन पुरावशेषों को, हमारे यहाँ के नेचर जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं, हिस्टोरिकल जो हमारे यहाँ हेरिटेज है, इनको अपने देश ले जा रहे थे। खुली लूट शुरू हो चुकी थी। व्हेन वी विल रीड द अमरावती, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर सेइंग हियर, व्हाट आई वांट टू से यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट अस कम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्तूपा एंड स्तूपा आर्किटेक्चर। और यहां से स्तूप है और यहीं से हम आपको स्तूप आर्किटेक्चर बताने के बाद आपको सांची के बारे में कुछ चीजों को बताएंगे। सांची आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा कि कनखेड़ा के पास मध्य प्रदेश में विदिशा के नजदीक सांची स्तूप की खोज 1818 में मेजर रायलेट के द्वारा किया गया। और फिर इस स्तूप को, सांची स्तूप को, जो 1888 में मेजर कोल ने पहाड़ी के ऊपर जंगल को साफ करवाया और स्तूप संख्या 1 को भरवाने के साथ ही उनके दक्षिणी पश्चिमी तोरण, द्वारों तथा स्तूप के 3 गिरे हुए तोरणों को उन्होंने पुनः खड़ा करवाया। मेरे कहने का सेंस सिर्फ इतना ही है कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने 84,000 स्तूपों के निर्माण का जो उसे श्रेय प्रदान करती है बौद्ध परंपरा, 7वीं शताब्दी ईस्वी के चीनी यात्री वेनसांग ने तक्षशिला, श्रीनगर, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, लुम्बिनी, श्रावस्ती, वाराणसी, सारनाथ, वैशाली तथा बोधगया में और कपिलवस्तु आदि स्थानों पर उसने स्तूपों को देखा था। परंतु दुर्भाग्यवश आज इन स्थानों पर इन स्तूपों को नहीं प्राप्त करते। समय के
साथ वो काल के गाल में समा गए, समय के साथ वो नष्ट हो गए, जिनका उल्लेख 7वीं शताब्दी में वेनसांग कर रहा था। वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में, प्रयाग में, कन्नौज में, मथुरा में, थानेश्वर में, बोधगया में, कपिलवस्तु में, कहता है वो कि बड़े पैमाने में स्तूप बने थे, भव्य स्तूप थे। लेकिन आज उन स्तूपों में कुछ ही स्तूप के अवशेष हमें दिखाई देते हैं। तो ये स्तूपों के बारे में चीनी साहित्यों से जो सूचनाएं मिल रही थी, उनमें से जो जिन स्तूपों के बारे में वेनसांग कह रहा था, उसमें से लगभग सभी नष्ट हो चुके हैं। प्रारंभिक स्तूपों में सांची का स्तूप सबसे अधिक प्रसिद्ध है। सांची स्तूप के बारे में हमने चैप्टर की शुरुआत में ही पढ़ा था कि ट्रेन से यात्रा करेंगे तो कनखेड़ा के पास पहाड़ी के ऊपर मुकुट के रूप में हमें सांची की स्तूप दिखाई देंगे। 3 छोटे छोटे स्तूप हमें पर्वत के ऊपर दिखाई देते हैं। सांची की पहाड़ी मध्य प्रदेश में के रायसेन जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर ऐतिहासिक नगरी विदिशा के समीप स्थित है। 1818 में 1818 दैट वाज द टाइम 1818 में जब सर्वप्रथम जनरल रायलट ने यहीं के स्मारकों की खोज की। अब सांची स्तूप के बारे में थोड़ी बात कर ले। सांची स्तूप कहां पे है? ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, और फिर मध्य प्रदेश के बाद विदिशा एक नगर है, वहां पे सांची पहाड़ी है, उसी पे स्थित है। कब की है ये? किस काल की बनी हुई सांची स्तूप? ये 3rd सेंचुरी बीसी की, अशोक के समय। सुंगों ने इसे मौर्य पीरियड, फिर इसके बाद सुंगों ने भी सांची स्तूप को द्विगुणित कराया और विस्तृत कराया और विशाल करा दिया। और फिर जब ये विस्तृत थी, इसको ढूंढा कब गया? सांची स्तूप को ढूंढने का काम ब्रिटिश अंग्रेज मेजर रॉयलेट ने 1818 में किया। 1818 that was the time when first time Sanchi was explored by British officer Major Rowlett. During 1888 रॉयलेट के बाद एच एच कोल, ये वही एच कोल है जो इस बात पे बल देते हैं कि पुरावशेषों को अपनी ही जगह रहने देना चाहिए, इसे हटाना नहीं चाहिए। इन्होंने सांची के 3 जो गेटवे थे उनको ढूंढा और उनको यथास्थिति खड़ा करा दिया। सांची के जो गेटवे थे उसमें जो ईस्टर्न गेटवे थी, ये अत्यंत सुरक्षित अवस्था में थी। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन थी जिसको मैंने आपको बताया। फिर यहीं से सांची से 3 स्तूप प्राप्त हुए। स्तूप संख्या 1, स्तूप संख्या 2 एंड स्तूप संख्या 3। स्तूप संख्या 1 में
बुद्ध के अवशेष हैं। स्तूप संख्या 2 में सारिपुत्र के हैं। सारिपुत्र डिसाइपल ऑफ बुद्धा। स्तूप संख्या 3 में महामौदगल्यायन। अवशेष रखे गए हैं। 3 स्तूप प्राप्त हुए और इन तीनों स्तूप को ही फिर बाद में एक विकसित रूप में हमें प्राप्त होता है। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन थी सांची के बारे में। मार्शल के अनुसार जो सांची का महास्तूप था उसका निर्माण अशोक के समय में हुआ था। यह ईंटों का बना हुआ था, लेकिन बाद में सांची के महास्तूप जो सेमी सर्किल था उसको, जो अशोक के समय था, उसको सुंगों ने द्विगुणित कराया और विस्तृत कराया। अब यहीं पे हम सांची की स्तूप आर्किटेक्चर पढ़ते हैं। स्तूप आर्किटेक्चर। स्तूप आर्किटेक्चर। I hope you have remembered my previous class where it was very clearly explained by me the stupa architecture. स्तूप आर्किटेक्चर में मैंने कल आपको जहां क्लास अपनी लास्ट खत्म की थी वहीं पे स्तूप आर्किटेक्चर के बारे में हमने डिटेल किया था। ओके, स्तूप जब भी कभी बनाए गए हैं तो सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। प्लेटफॉर्म के ऊपर सेमी सर्किल एरिया, दैट इज सेमी सर्किल एरिया, जिसे अंड भी कहा गया है, अंडा। देन आफ्टर इसकी टॉप पे सेंटर में इसे हर्मिका कहा गया है। हर्मिका को देवस्थान भी कहते हैं। ये वही जगह थी जहां पे महत्वपूर्ण चिता का भस्म या महत्वपूर्ण धातु अवशेष रखे जाते थे। इस हर्मिका के बीचों बीच सेंटर में एक यष्टि लगाई जाती थी। यष्टिया, जिसको दंड भी बोलते थे, दंड, और इसी दंड के सहारे अम्ब्रेला, ये क्या कहते हैं, इसको कहते थे अम्ब्रेला। छत्रावली, यष्टि पृथ्वीलोक से और जो ईश्वरी लोक था उसको अलग करने का एक माध्यम दिखाता था। स्तूप में बेल्ट भी बने होते थे। सांची स्तूप त्रिवेदी है, 3 बेल्ट है इसमें। इन्हें बेल्ट या मेधी भी कहते हैं। अब ये प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर स्तूप का निर्माण, अब इस स्तूप में आपको कितने पोर्शन दिखाई दिए? फर्स्ट प्लेटफॉर्म, दूसरा सेमी सर्किल एरिया जिसको अंड कहा गया, उसके ऊपर हर्मिका बनी हुई है जिसमें महत्वपूर्ण चीजें धातुओं से रखी जाती थी। उसमें एक यष्टि लगी हुई है, इस दंड को यष्टि कहते हैं। अम्ब्रेला लगाया गया है। ये स्तूप थे। स्तूप के चारों ओर मैंने कल आपको बताया था क्या बनाई जाती थी? रेलिंग। स्तूप के चारों ओर रेलिंग्स बनाई जाती थी और फिर
फिर चारों दिशाओं में गेटवे, इसको तोरण कहते थे, तोरण द्वार। इंग्लिश में गेटवे भी कहा गया उसको। चारों दिशाओं में। इन्हीं गेटवे में जो ईस्टर्न गेटवे था सांची स्तूप का, वो सबसे सुरक्षित अवस्था में था। दैट इज द स्तूप आर्किटेक्चर। ये स्तूप आर्किटेक्चर है। अब आपको स्तूप आर्किटेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहां प्रश्न एक उठता है, स्तूप आर्किटेक्चर, व्हाई वन स्तूपा बिल्ट। आपका बुक कहता है कि देयर वर अदर प्लेस टू दैट वर रिगार्डेड एज द सेक्रेड। That was because relic of the Buddha, such as the body remains or object used by him, were buried there. These were mound known as stupa. The traditions of erecting stupa may have been pre-Buddhist, but they came to be associated with Buddhism. Since they contained relics regarded as the sacred, the entire stupa came to be venerated as an emblem of both the Buddha and the Buddhism. According to Buddhist text known as the Asokavadana, Asok distributed portion of the Buddha relics to every important town in order to construction of stupa over them. By the 2nd century BC, the number of stupa, including those at Bharahut, Sanchi, Sarnath, लुम्बनी, कपिलवस्तु, वैशाली, had been built. My dear, स्तूप क्यों बनाए जाते थे? सबसे बड़ा प्रश्न ये था, स्तूप क्यों बनाए जाते थे? तो ऐसी कई जगह जिन्हें पवित्र माना जाता था, इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े अवशेष, उनकी अस्थियां, उनके प्रयुक्त किए गए सामान गाड़ दिए जाते थे और इन टीलों को ही स्तूप कहा जाता था। स्तूप बनाने की परंपरा, जैसा कि मैंने भी कहा, कि बौद्ध धर्म में बहुत पहले ब्राह्मण धर्म में दिखाई देती है। तो स्तूप बनाने की जो परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी, लेकिन वह बुद्ध धर्म से जुड़ गई। बौद्ध धर्म ने इसको अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि इनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था, इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अशोकावदान नामक ग्रंथ में, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्सों पर हर महत्वपूर्ण शहर में स्तूपों का निर्माण कराया। ईसा पूर्व 2री सदी तक, 2nd सेंचुरी BC तक भरहु, सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर स्तूप बनाए जा चुके थे। यहां पे दूसरा प्रश्न उठता है, स्तूप कैसे बनाए जाते थे? स्तूपों की वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले जो अभिलेख मिले, जो इंस्क्रिप्शंस मिले, स्तूप कैसे बनाए जाते थे? तो कहता है कि जो स्तूपों पे जो गेटवे हैं, जो उस पे जो इंस्क्रिप्शंस मिले, उसके आधार पे हमें क्लियर इंफॉर्मेशन है कि स्तूपों को बनाने के लिए राजाओं ने दान दिया, सामान्य लोगों ने दान दिया, बौद्धिस्ट मॉन्क और नन ने दान दिया। इस तरीके से इन लोगों ने बड़े पैमाने पे दान दिया और इन्हीं के दान से स्तूपों का निर्माण किया गया। सांची के तोरण द्वार का हिस्सा आइवरी जो गिल्ड्स थी, जो हाथी के दांत का काम करने वाले शिल्पकार थे, उनके दान से बनाया गया। सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने दान दिया। वे अपने गांव, अपने शहर का नाम बताते हैं, रिश्तेदारों का नाम बताते हैं, और इस तरह इनके दिए गए दान से इन स्तूपों का निर्माण हुआ। ये अपने में बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग बात है, स्तूपों का निर्माण। जो तीसरा पॉइंट है, द स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूपा, ये मैंने आपके सामने डिस्कस किया। कल स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूपा को आगे करते हुए मैं आपको अमरावती स्तूप के पास ले चलूंगा, अमरावती स्तूप के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा, और फिर यहीं से स्टोरी ऑन स्टोन, अमरावती स्तूप और स्टोरी ऑन स्टोन एक साथ हम
कनेक्ट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नए क्लास में, नए वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।